Leap year has 366 days. Yeah. And how many weeks were there? 52 weeks plus 2 odd days. The 2 odd days were there. And ordinary year, which is also non-leap year, you can say, has 365 days. That is 52 weeks plus 1 odd day. And as far as centuries are concerned, Disha, you're not coming for class online? Yes, sir. Why? What happened? There's no one to take care of my sister at home. Okay, all right. So this was it. And then centuries, I told you that every century is not a leap year. Every fourth century is a leap year, right? So if we talk about first 100 years, in first 100 years, we found that there were 76 ordinary years, that is non-leap years. And how many leap years were? 24. And then we did some calculation, if you recall. क्या calculation था? कौन बताएगा? It's ordinary year में एक odd day होता है. Leap year में 2 odd days होते हैं. And that's how we found out the total number of days. कितना था total number of days? 124 days were there. And फिर उसको हमने convert किया weeks और odd days में. कितने weeks आए थे? 17 weeks were there and 5 odd days were there. So in the first century, there were 5 odd days. And then I gave you a table. Everyone switch on your camera also. Ananya, Disha, Anya. And then what was the table? Garvita, yaad hai table? Okay. So this is the table where you can remember कि अगर 0 odd day आता है तो कौन सा दिन होगा? Right. So if you have 0 odd days, it'll be Sunday. If it's 1, it'll be Monday. If it's 2, it'll be Tuesday. If it's 3, it'll be Wednesday. 4 will be Thursday. 5 will be Friday. And 6, it will be Saturday. So this is the table you have to remember. So leap year, 2 odd days. Ordinary year, 1 odd day. And as far as centuries are concerned, first century, second century, third century all have 5 odd days because they are not the leap year. Even though year 200 is divisible by 4, it's not a leap year. Even though 300 is divisible by 4, it is not a leap year. तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जो कैलकुलेशन फर्स्ट सेंचुरी का था, दिस वाज फॉर द फर्स्ट सेंचुरी, फर्स्ट 100 years. इवन दो 100 इज डिविजिबल बाय 4, द ईयर 100 वाजंट अ लीप ईयर. इसीलिए हमने अगर 100 को 4 से डिवाइड किया तो 25 आता है, लेकिन एक हमने साल कम कर दिया बिकॉज द ईयर 100 इज नॉट अ लीप ईयर. सेम कैलकुलेशन फॉर next 200 years, third century also, and so you have 5 odd days. Same kind of calculation we did. ये 5 odd day और ये 5 किस वाले में? नहीं नहीं, नेक्स्ट 100 years की बात कर रहा हूँ. टोटल अगर बात करेंगे 0 से 200 फिर 3 आएगा. तो जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ की है 0 से 100 years की, सेम कैलकुलेशन इज फ्रॉम 101 to 200, राइट? सो दिस 5 odd day एंड दिस 5 odd day दोनों को ऐड करोगे तो कितने आएंगे odd days? 10. 10 odd days का मतलब क्या हुआ? 1 week plus 3 odd days. 3 odd days का मतलब क्या हुआ? Yes. So the last day of the first century was Friday. Last day of the second century was Wednesday. And if I add these also 201 से लेके 300 साल तक, उसमें भी 5 odd day आएंगे. तो बिगनिंग से तुम्हें कैलकुलेट करना है. 5 + 5 + 5 कितना हो गया? 15 odd days. 15 odd days का मतलब क्या हुआ? 2 weeks plus 1 extra day.
वन ऑड डे का मतलब क्या हो गया श्रीजा? मंडे. दैट मीन्स द लास्ट डे ऑफ द थर्ड सेंचुरी वॉज मंडे. देन फॉर द फोर्थ सेंचुरी कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट था, 301 से लेके 400 साल तक, बिकॉज इन द फोर्थ सेंचुरी इवन द ईयर 400 विल बी लीप ईयर. Year 400 is a leap year. Remember this. Every century is not a leap year, but every fourth century is a leap year. तो ये leap year था. As a result, इस बार क्या होगा? 75 ordinary years हो जाएंगे, whereas 25 हो जाएंगे leap year. इस वजह से क्या होगा? 75 into 1 करोगे, 25 into 2 करोगे, total days कितने आएंगे? 125. That means 17 weeks plus 6 odd days आ गए थे. वीक्स के अलावा जो दिन आते हैं उनको ऑड डेज बोला जाता है. तो अब बिगनिंग से शुरू करो. फर्स्ट सेंचुरी में 5 दिन ऑड, पांच पांच इन फोर्थ के कितना होगा टोटल? 5 odd days in the first century, 5 odd days in the second century, 5 in the third century, 21 days, that is 3 weeks plus 0 odd day. कहने का मतलब लास्ट डे ऑफ द फोर्थ सेंचुरी वॉज संडे. तो अब तुम्हें पता लग चुका है कि कौन सा दिन लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी हो सकता है. बताओ मुझे. विच डे कुड बी लास्ट डे ऑफ सेंचुरी? इट कुड बी संडे, नो नो नो, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे. तो क्वेश्चन ये आएगा, विच डे कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी? ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे कैन बी लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी. सिमिलरली, व्हाट विल बी द फर्स्ट डे ऑफ ए सेंचुरी? बिकॉज संडे लास्ट था तो मंडे आ सकता है, मंडे लास्ट था तो ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे लास्ट था तो नेक्स्ट का थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे लास्ट था सैटरडे हो सकता है. सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर एंड ऑड नंबर ऑफ डेज. अब हम आगे बढ़ेंगे. See, in the first century, there'll be 76 ordinary year, 24 leap years. First 100 years. ठीक है? हाँ, 100 years का. अब एक बेसिक बाद में करना, तुम रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है? इसमें टाइम लग जाएगा अदरवाइज. सीधा रिकॉर्डिंग लेटर. या मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर तुम कॉपी कर लेना, ठीक है? एक क्वेश्चन करते हैं. What was the day of the week on 16th July 1776? 16 जुलाई 1776 को कौन सा दिन था? क्वेश्चन लिख लो. एंड एज आई टोल्ड यू दैट every fourth century calendar is repeated because fourth century के एंड में 0 odd day आता है. Try this question. What was the day of the week on 16th July 1776? I'll just tell you कैसे begin करना है इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे. फोर्थ सेंचुरी का लास्ट डे में कितने ऑड डेज आए थे? फोर्थ सेंचुरी का लास्ट डे में ऑड डे कितना था? 0 ऑड डे था. अभी किया था कैलकुलेट. 21 डेज मतलब 0 ऑड डे था. सिमिलरली 800 सेंचुरी का भी लास्ट डे ऑड डे आ जाएगा, 0 आएगा. 12th का भी 0 हो जाएगा, और 16 का भी वही हो जाएगा. ठीक है? बिकॉज एवरी फोर्थ सेंचुरी थिंग्स आर रिपीटेड. every fourth century things will be repeated. Right, आन्या? तो अब जरा देखो, हमें कहां से शुरू होना चाहिए? 1776 किसके क्लोजर है? इज इट क्लोजर टू 2000 और 1600? कहां से बिगिन करें? सो वी कैन बिगिन फ्रॉम हियर.
हम यहां से शुरू कर सकते हैं। कैसे शुरू करोगे? 1601 टू लेके 1700 तक, इट इज विच सेंचुरी? नॉन लीप ईयर सेंचुरी या लीप ईयर वाली सेंचुरी है? नॉन लीप ईयर वाली ना, बिकॉज एवरी फोर्थ सेंचुरी वाला इज द लीप ईयर सेंचुरी, सो से नॉन लीप ईयर वाली सेंचुरी। तो इसका कैलकुलेशन क्या होगा? वही सेम कैलकुलेशन, देयर इज नो नीड टू रिपीट इट। इस सेंचुरी में 24 लीप ईयर होंगे और 76 ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे। देख लो एक बार। इफ यू वांट टू रिपीट द कैलकुलेशन आई रिपीट ऑल्सो। श्रीजा देख लो, फिर बाद में मत बोलना। तो 17 सेंचुरी था इसलिए ये वाला कैलकुलेशन हुआ। अगर ये होता 2000 वाला तो 25 एंड तो 75 हो जाता। हमें डे बताना है, तो कैलकुलेशन इज द सेम। लीप ईयर में दो ऑड डेज होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर में वन ऑड डे होता है। कितना सम आएगा इसका? 48 प्लस 76 है ना? राइट। एंड दैट मीन्स इट वुड बी हैविंग 17 वीक्स प्लस 5 odd days। ये कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज दिस कैलकुलेशन वुड बी द सेम फॉर एवरी नॉन लीप सेंचुरी, है ना? चाहे वो ईयर 300 हो, 500 हो, 17 हो, 18 हो, 19 हो, सब में सेम कैलकुलेशन होगा। इसका मतलब 1700 तक ऑड डेज हमें पता लग चुके हैं, बिकॉज 16th वाले में जीरो था। कैलकुलेशन यहां से शुरू होगी, ठीक है? अब मुझे बताओ, मुझे 16 जुलाई तक पहुंचना है। आई नीड टू रीच टू 16 जुलाई 1776। उससे पहले कितने साल हैं? 75 ईयर्स। लुक एट दिस, वी हैव रीच टू 1700। अब हम 1700 से 1775 तक जा रहे हैं। हाँ, तो 76 में तो फिर जुलाई आ गया ना बीच में, पूरा कंप्लीट ईयर नहीं हुआ ना। तो 75 ईयर्स में मेरे को बताओ कितने लीप ईयर हैं और कितने ऑर्डिनरी ईयर हैं। आ चुका है? हाँ। तो 75 ईयर्स का मतलब इसको 4 से डिवाइड किया तो कितने लीप ईयर आ गए 4 से डिवाइड करके? 18 4 जा 72, 18 लीप ईयर हो गए। और 75 में से 18 माइनस किया, 67 ऑर्डिनरी ईयर्स आ गए। हाँ। लीप ईयर में दो और डेज होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर में वन ऑड डे होता है। कितना आ रहा है कैलकुलेशन ये? हाँ। तो 57 ऑर्डिनरी ईयर्स। तो 57 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ रहा है टोटल? 93। सो दिस इज 93। 93 डेज को वीक्स में कन्वर्ट करो। 13 वीक्स एंड हाउ मेनी डेज? 2 days। ट्यूसडे अनाउंस। हाँ। 93 का मतलब हो गया 13 वीक्स। तो 13 × 7 कितना हुआ? ठीक है। 13 + 3। यस। 2 odd days तुम्हारे यहाँ पे आ गए। तो एट द एंड ऑफ 1776 अगर तुमसे पूछा जाता व्हाट इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर 1775, तो क्या आंसर होता? यस। अगर क्वेश्चन होता कि व्हाट इज द लास्ट डे ऑफ 1775, तो यहां से शुरू किया 5 odd day, 2 odd day ये हो गए, दोनों को ऐड किया 7 odd days हो गए। 7 odd days का मतलब इल बी संडे। लास्ट डे ऑफ 1775 संडे था। नेक्स्ट निकाल दो, नेक्स्ट। हाँ बस वो आ जाएगा, मंडे था लास्ट, है ना? अब लेकिन हमें और आगे बढ़ना है। फिर आगे कैसे बढ़ोगे? हमें, हाँ, अब मंथ लेना पड़ेगा। लेट्स डू दैट कैलकुलेशन। अब मंथ वाला कैलकुलेशन करते हैं। तो जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च। हम्म नो नो नो, यू हैव टू गो टिल दिस ओनली। हाँ। एंड जुलाई के कितने दिन है? 16 डे, बिकॉज 16 जुलाई करना है ना, मैं वैसे 31 होते हैं। नाउ फेब्रुवरी का ध्यान रखो, 1776 लीप ईयर ऑर्डिनरी ईयर?
4 से डिवाइड हो रहा है, इसे लीप ईयर, सो विल बी 29 डेज। मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड 16 ही हो गए। तो एक तरीका तो ये होता है सब डेज को ऐड कर लो और फिर ऑड डेज निकाल लो, वीक और डेज में कन्वर्ट करके। उससे बेटर ये होगा यहीं पे ऑड डेज निकाल लो। 31 डेज का मतलब क्या हुआ? 28 डेज मतलब 4 वीक्स, सो 3 ऑड डेज। जनवरी में 3 ऑड डेज हैं। 29 का मतलब हुआ 28 + 1, 1 ऑड डे हो गया। शीजा लिखते जाओ साथ साथ। ऑड डेज 20 वीक्स को छोड़ के जो रिमेनिंग डेज है वो लिख दिया। मार्च में 31 दिन होते हैं, तो इसमें कितना होगा? 3 ऑड डेज हो गया। अप्रैल में कितना हो जाएंगे? 28 + 2, 2 ऑड डेज। मई में कितना हो जाएगा? 28 + 3, 3 ऑड डेज। एंड जून में 2 ऑड डेज, 28 + 2, एंड इसमें कितना होगा? 7 × 2, 2 वीक्स प्लस 2 ऑड डेज। सिर्फ ऑड डेज को तुम्हें ऐड करना है। जल्दी लिखो, टोटल बताओ कितना आ रहा है ऑड डेज। ठीक है, 5 + 2 7, 3 + 7 हो गया 14, 15 16, 16 एंड 5, 21 एंड 2, 23 है ना। तो टोटल ऑड डेज आ गए 23। 23 ऑड डेज का मतलब क्या हुआ? 21 + 2, 21 तो वीक हो गया, 3 वीक्स। 2 ऑड डेज बट। हाँ 16 कौन सा, ये वाला? हाँ तो वही बात हो गई ना, 16 मैंने वहां से ऐड किया ना, 5 + 2, हालांकि 0 हो गया। 5 + 2 7, 0 हो गया, तो वो काउंट नहीं हो रहा है। इनफैक्ट अगर उसको भी काउंट करोगे तो 23 आ रहा है। यू टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, दिस दिस दिस, ये सारे ऐड करो या तो। लेकिन दूसरा तरीका है कि जो 7 होता जा रहा है उसको 0 बना दो। There will be 2 odd days. That means the last day, I mean 16th July 2000, sorry, 1776 was Tuesday. 16th July 1776 was Tuesday. एक और क्वेश्चन करते हैं। आज क्या तारीख है? 24 अप्रैल 2000। और डे कौन सा है आज? राइट, 24 April 2025 is Thursday. My question for you is, what is 24 April 2035? डे बताना है। What day will be on, पहले लिख लो सारा बोर्ड का। What day will be on 24th April 2035? तो मैं इसका एक तरीका बताता हूँ, ऑड डेज के बिना भी हम इसको कर सकते हैं। February, whenever you cross February of a leap year, you move forward by 2 days. And whenever you cross February of an ordinary year, you move forward by, लिख लो एक बार इसको। if we cross if we cross February of if we cross February of a leap year, we move forward we move forward by 2 days. And if we cross February of non-leap year, ordinary year, if we cross February of non-leap year or ordinary year, we move forward by 1 day. सिमिलरली अगर हम पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे? सेम कॉन्सेप्ट, वो भी लिख लो। इफ मी इफ वी go back if we go backward and cross
cross February of a leap year, then go back by 2 days, and if we go back, or if we cross February of ordinary year, if we cross February of a non-leap year, we go back by 1 day. So this is the concept. ठीक है, अब मुझे बताओ, इसके दो क्वेश्चन कर लेते हैं. एक कर लेते हैं, व्हाट विल बी 24 अप्रैल 2010, और दूसरा 2035. 24 अप्रैल 2010 में बताना है तुम्हें. यहां से स्टार्ट कर लो. एक स्टेप में बता देता हूं. 24 अप्रैल से 26 अप्रैल में जब तुम आओगे, तो आर यू क्रॉसिंग फेब्रुअरी ऑफ लीप ईयर? फेब्रुअरी ऑफ लीप ईयर क्रॉस हो रहा है क्या? पक्की बात है? क्यों? 20 ना तो 25 लीप ईयर है, ना 26 लीप ईयर है, तो वी आर नॉट क्रॉसिंग फेब्रुअरी ऑफ अ लीप ईयर. तो विल मूव फॉरवर्ड बाय, दैट इज, दिस इज फ्राइडे. अब ऐसे करते जाओ, मूव टू 31 टिल 35. आंसर बताओ आराम से, दिस नो हरी. दिशा, आ रहा है आंसर? नहीं, I'm so sorry. करो फिर. टेक अनन्या. अनन्या क्या हुआ तुम्हें आज? शायद. कुछ नहीं। हाँ, तुम तो आना चाह रही थी आप भी. नहीं, तो मेरा स्कूल स्टे बैक था। अच्छा, चलो ठीक है. वो उसका वो था स्टे बैक. वो वाला दूसरा, दूसरा वाला भी करो. 20, हाँ. कैसे किया? लिख के करो ना, क्या कर रही हो तुम? तभी तो गलती होती है. यहाँ लिख के करो, आ जाएगा. हम्म. अगर तुम फेब्रुअरी क्रॉस करोगे लीप ईयर का, तो 2 दिन आगे जाओगे. ऑर्डिनरी का फेब करोगे तो 1 दिन आगे जाओगे, जो 4 से डिविजिबल होता है. जो ईयर 4 से डिविजिबल है वो लीप ईयर है. जैसे 26 नहीं था 4 से डिविजिबल, तो फ्राइडे 1 दिन से आगे गए. अब क्या होगा? 2027. इसमें भी हम नहीं कर रहे क्रॉस, तो क्या आ जाएगा? सैटरडे हो जाएगा. फिर नेक्स्ट हो जाएगा 2028. तो जब अप्रैल 24 अप्रैल 2027 से 24 अप्रैल 2028 जाओगे, तो 2028 लीप ईयर है. इससे लीप ईयर, तो तुम्हें 2 दिन आगे जाना पड़ेगा, बिकॉज फेब्रुअरी क्रॉस हो रहा है ना. तो क्या आना चाहिए? मंडे आएगा ये. अच्छा, ये वाला तुम्हारा हो गया था. करो, बोर्ड पे कर दो, लिख दो सारा. ट्वेंटी नाइन ऑर्डिनरी होगा, तो ट्यूसडे हो जाएगा. क्या आ रहा है फिर? अब चेक कर लो. नहीं हो सकता है. कौन सा? 28 वाला? 27 से 28 जा रहे हो, तो मंडे होगा ना, 2 दिन आगे है ना. बिकॉज अप्रैल, तो अब यहाँ बोर्ड पे कर लो नए सिरे से. ठीक है, 1 डे चलेगा. ये 32 है, 32 से लीप ईयर. नहीं, थर्सडे के बाद तो सैटरडे नहीं आएगा. अप्रैल 2032 में पहुंच चुकी हो तुम.
नहीं, अप्रैल है ना, डेट देखो। 24 अप्रैल का मतलब हमने फेब्रुवरी क्रॉस कर दिया। 24 अप्रैल 2031 से जब 24 अप्रैल 2032 में जाओगे तो तुम्हें फेब्रुवरी क्रॉस होगा नहीं होगा? हाँ, विल बी सैटरडे। यस, सो आंसर इज ट्यूसडे, ठीक है। तो डेट पे बड़ा फर्क पड़ता है। इफ यू क्रॉसिंग फेब्रुवरी ऑफ लीप ईयर तब क्रॉस करना है। सही था तुम्हारा। नेक्स्ट वाला कर लो अब। सभी को समझ में आ गया? अनन्या, आन्या, आशना, Yes. दिशा। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट वाला करो। मैंने क्या बताया था? 24 अप्रैल 2015, है ना? 10, सॉरी 10 करो। शीजा लिख लिया ये वाला? लिख लो। ये देखो आंसर, यहाँ देखो। सैटरडे आ रहा है। 2025 हमारे पास में है। कौन कर रहा है बोर्ड पे? आ जाओ गर्विता। हाँ, सारे लिखो, उससे गलती नहीं होगी। हाँ, कैसे होगा संडे? ये सैटरडे। तुम्हारा, ये लीप ईयर है ना, तो 2 दिन आगे जाओगे। लीप ईयर, जब ये लीप ईयर होता है ना, 2 दिन आगे जाना पड़ता है। जैसे एक और चीज देखो, ये लीप ईयर है, इसमें 2 दिन आगे जाओगी। ये लीप ईयर, 2 दिन आगे जाओगी, ठीक है। तुम बहुत पेन को बहुत पास रख रही हो, थोड़ा दूर। हाँ, ऐसे। क्या रहा है? इसमें भी ध्यान 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 देना, बिकॉज जब 24 अप्रैल से तुम जाओगे, 24 अप्रैल 2024, तो फेब्रवरी क्रॉस हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ। हाँ, ये ट्यूसडे गलत लिख रही हो, गलत लिख रही हो। 24 अप्रैल से 24 अप्रैल 2024 जा रही, पीछे जा रहे हैं। क्यों जाओगे 2 दिन? तो फेब्रुवरी कहाँ क्रॉस हुआ? उल्टा चल रहे हैं। वो कई बार पता है गलती से वो हो जाता है सही। किसी से पूछा भाई बताओ 64/16 कितना होता है, गर्विता से पूछा एक बार, तो उसने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 से 6 काट दो, 4/1 4 आंसर है। भाई आंसर तो सही है। फिर इससे किसी ने पूछा 95/19 बताओ, उसने कहा नो प्रॉब्लम, 9 से 9 काट दो, 5/1। आंसर तो सही आ रहा है ना? सही है, बट मेथड तो गलत है। तो अभी फेब्रुवरी क्रॉस नहीं हुआ है। आगे ना आंसर। सही है। सो मंथ एंड डेट मैटर्स। आइए वेडनेस। हाँ, अगले वाले में 2 आएगा, बिकॉज 24 अप्रैल 2024 से 2023 में फेब्रवरी आएगा अब। पीछे जा रहे हैं ना, उल्टा कैलेंडर चल रहा है अब। 2020 इज अ लीप ईयर, लेकिन हाँ ठीक है, सही है। नेक्स्ट वाले में आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में फेब्रवरी क्रॉस हो रहा है। परफेक्ट। 17 से 16 में फेब क्रॉस नहीं होगा, लेकिन 16 to 15 में फेब क्रॉस होगा, तो 2 दिन पीछे चले गए। उल्टा चल। हाँ, ये वो 2025 से हम 2010 तक जा रहे हैं, जैसे ये किया था ना। इसमें हम फॉरवर्ड जा रहे थे, उसमें बैकवर्ड जा रहे हैं। हमें ये पता करना है 2010 टू 24 अप्रैल कौन सा दिन था। 2025 से, बिकॉज वी नो दिस डे, तो हमें जाना था 2010 24 अप्रैल को कौन सा दिन था। इट वॉज सैटरडे। तुम्हारी छुट्टी थी, लेकिन यहाँ पे क्लास थी। ये आ रहा है? इज इट ओके विद एवरीवन? लिखो, तुम लिखते रहो।
All these classes will be recorded also. You can watch later as well. सारे क्वेश्चन कर लिए तो कोई डाउट है? गुड। एग्जाम्पल 3 देखो इसमें, या मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे। प्रूव दैट calendar for the year 2003 will serve for 2014 as well. Prove that calendar for 2003 will serve for 2014 also. तो अभी कर लेंगे। हाँ, लेकिन बैकवर्ड में तुम ध्यान देना उसका फेब्रुवरी कब क्रॉस हो रहा है। तो इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमें ये काउंट करना पड़ता है कि कहाँ पे किस ईयर पे जाके नंबर ऑफ ऑड डेज 0 आ जाते हैं। ठीक है, तो जिस ईयर पे आके नंबर ऑफ ऑड डेज 0 हो जाएगा, उससे अगले साल का कैलेंडर वुड बी द सेम एज 2003। सो 2003 इज अ लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, नॉन लीप ईयर ना। तो नॉन लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 1। इट हैज 1 ऑड डे। नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा? 2004 इज अ लीप ईयर। हाउ मेनी ऑड डेज? 2 ऑड डेज हो गए। क्वेश्चन ये था कि 2003 का जो कैलेंडर है वो 2014 का सेम होगा। फिर 2005 में आ जाओ, ऑर्डिनरी ईयर हो गया ये, 1 ऑड डे हो गया। 2006 पे आ जाओ, अगेन ऑर्डिनरी ईयर, अगेन 1 ऑड डे। टू 2007 ऑर्डिनरी ईयर, अगेन 1 ऑड डे। अब तक कितने ऑड डेज हो चुके हैं? 1, 3, 4, 5, 6 हुए ना ये। हाँ, 6 हो गए, 6 हो गए। अब 2000, द मोमेंट यू रीच टू 8, इट्स अ लीप ईयर। तो यहाँ पे 2 ऑड डेज हो गए, मतलब 7 मिस हो गया। यहाँ तक का टोटल 6 था, और फिर नेक्स्ट टोटल आ गया 8, मतलब 7 इज नॉट देयर इन बिटवीन। अगर बीच में कहीं 7 आ जाता ना, तो उस वो सेम हो जाता फिर। किस वाले में? देखो, जब 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में ऑड डेज 0 बन जाते हैं तो कैलेंडर सेम होता है, बिकॉज 0 ऑड डे पे वापस सेम डे से शुरू होता है ना वो ईयर। तो यहाँ तक 6 डेज हो गए ऑड डेज। अगर ये सपोज ऑर्डिनरी ईयर होता तो यहीं पे 0, 7 हो जाते, ऑड डेज मतलब 0 ऑड डेज हो जाते। तो जो अगला साल था उसका कैलेंडर सेम एज 2003 हो जाता। देन 2009 पे पहुंचो, ऑर्डिनरी ईयर, 1 ऑड डे। फिर 2010 अगेन ऑर्डिनरी ईयर, 1 ऑड डे। फिर 2011 अगेन ऑर्डिनरी ईयर, 1 ऑड डे। कितने टोटल हो गए बताना ऑड डेज यहाँ तक? 8, 9, 10, 11 हो गए ना। फिर आगे बढ़ो, 2012। 2012 कौन सा है? इसे लीप ईयर, 12 4 से डिविजिबल है, तो 2 ऑड डेज हो गए इसमें। तो अब कितने ऑड डेज आ गए तुम्हारे? 13 ऑड डेज आ चुके हैं यहाँ तक, है ना। द वेरी नेक्स्ट ईयर आई राइट इज 2013। हाँ। ये 1 ऑड, 1 मिनट, 14 आ गए। 14 ऑड डेज का मतलब 0 ऑड डे आ गया। तो जो अगला साल होगा, दैट इज द, जब तुम क्रॉस करोगी, फेब्रुवरी का क्रॉस हुआ है इसमें,
इसमें नहीं हुआ ना, इसमें हो गया था। हाँ, ये सही था, सही कर रही हो। इसमें क्रॉस, इसमें नहीं होगा अभी क्रॉस, संडे आएगा ये। अब नेक्स्ट वाले में तुम्हारे 2 दिन, ये फ्राइडे आ जाएगा। सो 14 डेज का मतलब 2 कंप्लीट वीक्स, यू हैव 0 ऑड डेज। तो 2013 के बाद 0 ऑड डे आ गया, दैट मीन्स 2014, द वेरी नेक्स्ट ईयर, वुड बी हैविंग द सेम कैलेंडर एज 2003। 2003 का कैलेंडर वुड बी द सेम एज 2014। तुम चाहो तो मोबाइल में चेक भी कर सकते हो, सेम डे आएगा, सेम कैलेंडर। कर लिया? हाँ, क्या आ रहा है? हाँ, कौन सा क्वेश्चन था? इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम है। हाँ, वो है ना। कर लेते हैं भाई। हम जनरली ऐसा कर लेते हैं, 1919 का निकाल लेते हैं। एक और क्वेश्चन करो सिमिलर सा। 1919, सपोज 2003 की जगह ये होता 1990। तो 1990 के बाद विच ईयर वुड बी हैविंग द सेम कैलेंडर एज 1990? क्वेश्चन लिखो, विच ईयर आफ्टर 1990, which year after 1990 would have the same calendar as that of 1990? सेम लॉजिक, आराम से कर लो। आ गया तुम्हारा? सही कर रही हो। पूरा मतलब आदत इतना लिख दो ना। हाँ, उसमें ऐड करना हो सकता है, 7 पे ही आ जाए तुम्हारा सेम। यहाँ तो 6 के बाद 8 आ गया था ना। सैटरडे आ रहा है। इसमें इसमें क्रॉस नहीं होगा तो एक दिन ही आएगा वो। ट्यूसडे हो गया, उसके अगले वाले में हो जाएगा क्रॉस। तो 1990 से शुरू करो। 1990, इज इट अ लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर? निविया, 1990 लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है? 90 को तुम 4 से डिवाइड कर सकती हो? नहीं ना? पक्की पक्की बात है। इट्स नॉट डिविड बाय 4, ठीक है। Ordinary. इट इज नॉट, इसे ऑर्डिनरी ईयर है ये। तो कितना ऑड डे होगा? 1। ऐसे करते जाओ और कीप ऑन एडिंग ऑल्सो। द मोमेंट यू गेट 7 ऑड डेज, इल बी द सेम। ये सैटरडे नहीं आएगा, ट्यूसडे के पहले तो वो आता है। ट्यूसडे, मंडे, संडे आएगा। ये सैटरडे आ गया, सही है। आ गया, वही आ गया फिर। सो 1991 ऑर्डिनरी ईयर है, 1 लीप ईयर, 1 ऑड डे। 1991 अगेन ऑर्डिनरी ईयर, 1 ऑड डे। 1992, इज इट अ लीप ईयर? यस। 92 इज डिविजिबल बाय 4, तो 2 ऑड डेज हो गया। 1993 विल बी ऑर्डिनरी ईयर, 1 ऑड डे। 1994 ऑर्डिनरी ईयर, 1 ऑड डे। 1 2 3 4 5 6। 1995 अगेन ऑर्डिनरी ईयर, 1 ऑड डे। अब देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे तुम्हारा 7 ऑड डे आ गया। मतलब 7 ऑड डे का मतलब 0 हो गया। इसका मतलब इसके जो अगला साल होगा उसका कैलेंडर वुड बी द सेम एज 1990। यू कैन चेक इन मोबाइल। 1990 का कैलेंडर वुड बी सेम एज दैट ऑफ 1996। ये था नेक्स्ट वाला, बिकॉज 0 के अगले वाला, बिकॉज वो वापस सेम डे से रिवाइज शुरू होता है। तो यू हैव टू बेसिकली ये वाला लिख लो, ये वाला लिख लो, एक ही बात है। कॉन्सेप्ट सेम था। और कौन सा था? हम्म,
You all have the booklet 10 ना? और ये क्वेश्चन करो. What was the day of the week? This booklet का क्वेश्चन है तुम्हारा ये. बुक पेज नंबर 208. पेज नंबर 208. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करो. What was the day of the week 17th June 1998?
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब ठीक है। यस तो सर। 136 को कन्वर्ट किया, कितने वीक्स बता रही हो? 19 वीक्स प्लस 3 ऑड डेज। तो हमें सिर्फ ये याद करना है अब। नेक्स्ट कैलकुलेशन सिर्फ हम 3 ऑड डेज लेंगे, बिकॉज दैट इज यूजलेस फॉर अस नाउ। अब हम आते हैं मंथ्स पे। मंथ का क्या कैलकुलेशन होगा? जून तक जाना है मुझे। और जून, कैन आई राइट डायरेक्टली द ऑड डेज, बिकॉज 31 का मतलब 3 ऑड डेज हो गया। फेब्रवरी, 1998 इज ऑर्डिनरी ईयर, तो ये तो वैसे 0 हो गया, 28 होता है। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में, जून में कितने डेज हैं? 17। इन सबको ऐड कर लो। 3 + 3, 6 + 2, 8, 8, 17, 25, 25 + 3, 28, 0 हो गया। सो 28 + 3 हो जाएगा 4 वीक, 3 ऑड डेज। 3 ऑड डेज का मतलब वेडनेसडे। तो 17 जून 1998 वॉज वेडनेसडे। किसी को डाउट है इसमें? दिशा, अनन्या, आन्या, अथर्व, यू ज्वाइन लेट। अथर्व, I'm down with viewer. So ओके। and sir, तो question sir just as a recap sir, question one का क्या होना चाहिए? किसका? Question 1 2 3, question 1 2 3 का 1 2 3 का मतलब? ये क्वेश्चन वन of कर this लेते हैं। calendar कर लेते हैं वन। क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लो एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 1 ऑफ द एक्सरसाइज। अभी किया था तुम लोगों ने। जनवरी 2007 was Monday. You have to identify Jan 1st of, ये तो इसमें क्या करना है? तो बहुत, ये तो मैं भी बता सकता हूँ, इतना इजी क्वेश्चन है, मेरे से भी हो जाएगा। व्हेन यू मूव फॉरवर्ड, अभी मैंने एक रूल लिखवाया था, व्हेन यू मूव फॉरवर्ड बाय, या व्हेन यू मूव फॉरवर्ड बाय 1 डे, वन, इफ यू क्रॉस ऑर्डिनरी ईयर यू मूव फॉरवर्ड बाय 1 डे। अच्छा तो आंसर वुड बी ट्यूसडे। ठीक है। अच्छा understood sir. So okay तो ये रिमेनिंग क्वेश्चन तुम्हें करने हैं खुद से, ठीक है। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम एक क्वेश्चन दिया था ग्रिड वाला, 2025 यू सीट का। हाँ, वो ट्राई करते हैं। sir. नेक्स्ट क्लास में आई बी डूइंग यू सीट क्वेश्चंस। तो बुकलेट 3 लेके आना, क्लास अभी खत्म नहीं हुई, ठीक है। डोंट बी हैप्पी, जाना नहीं है अभी। वो वाला क्वेश्चन ट्राई करो। Excuse me sir, और हाँ, क्वेश्चन फोर का क्या था? क्वेश्चन 4 का भी किया था ना हमने, वेडनेसडे आया था। वेडनेसडे आया था। सही है, हो गया। तुम्हारे सर याद कर रहे हैं तुम्हें, पता है। फोन आया था अभी उनका मेरे पास। ये लास्ट वाला था, देख लो। तो वन क्वेश्चन आई,
gave you was this. This is 2025 UCET question. क्या नंबर था बताना जरा मुझे? 3, 4, 5, 6? Question mark. Right. This is 2025 UCET question. सोचो क्या सीक्वेंस क्या पैटर्न बन रहा है, एंड इफ यू आंसर दिस विल बी गुड, वरना निविया बोर्ड पे कर देगी अभी तुरंत। क्यों इतना घबराना क्यों है? मैथ्स से डरना नहीं, मैथ्स से भिड़ना है, ठीक है? डर जाओ मैथ्स से। यस, गुड। छोटा भाई है तुम्हारा? बहन? अच्छा, तो फिर तो लड़ाई नहीं होती होगी ना, मम्मी से होती है? तो इसी तरह मैथ्स से लड़ना पड़ता है, मैथ्स से भिड़ जाओगे तो आंसर आ जाएगा, अगर छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा। ट्राई टू, अच्छा थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ, ट्राई टू रिलेट द नंबर्स विच आर इन द ऑपोजिट, यू नो। शीजा ये वाला कर लो क्वेश्चन अब। शीजा डायग्राम बनाओ, ये वाला, ये घर पे करने हैं। शीजा ये सारे क्वेश्चन घर पे करने हैं, अब रिमेनिंग ये करो पहले। अब ड्रॉ दिस डायग्राम, ये तुम कर सकती हो। ये बताना है ये कौन सा नंबर है, ठीक है? ऑपोजिट नंबर्स विथ एक पैटर्न बनाने की कोशिश करो। 3 8 जा 24 होता है, लेकिन 4 8 जा 60 नहीं है। अथर्व, कुछ पैटर्न बन रहा है? सर इसका हाँ। हाँ सर बन रहा है। बताओ फिर क्वेश्चन मार्क पे कौन सा डिजिट आएगा, क्या नंबर आएगा? शीजा बना लिया? सर जल्दी लिखा करो तुम, ठीक है? थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। फास्ट करो। 3 8 जा 24, लेकिन 4 15 जा 60 होता है। तो कैन यू फाइंड सम कोरिलेशन, सम पैटर्न? सोचो, पुश योर सेल्फ। वो 1010 लिखा है क्या? कौन सा? नहीं, 210। 210 लिखा है सर। इट्स 210। ये बताना है, क्वेश्चन मार्क बताना है। हो गया, तो मैंने लिख लिया। इट्स 210। हाँ, वही वही है सारी चीजें। सम सीक्वेंस, सम पैटर्न यू नीड टू फाइंड। सोचो, पुश योर सेल्फ, कर पाओगे तुम लोग। हाँ, ये वाला करो। देखो, मैं तो अभी 1 सेकंड में बता दूंगा, उसका फायदा नहीं है। यू ट्राई योर सेल्फ। कुछ स्क्वायर करो, कुछ क्यूब करो, कुछ सब्ट्रैक्ट करो, बट पैटर्न ऑपोजिट नंबर के, बिकॉज यहाँ तो कंसेक्यूटिव नंबर्स यहाँ नहीं है ना, बड़े बड़े नंबर्स हैं। थ्री स्क्वायर इज 9, बट 24 है। 3 क्यूब इज 27 माइनस 3। कुछ पता लग पा रहा है? 3 क्यूब इज 27, बट ये 24 है। 3 क्यूब माइनस 3, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या? जरा देखना, शीजा इधर देखो, ये नंबर देखो। 3 क्यूब माइनस 3 कितना आएगा? 24 आ रहा है ना? अब इज दिस सेम पैटर्न फॉलोड इन द सेकेंड वन? वो जरा देखो। 4 to the power 4 minus 4 is how much? 64 minus 4 minus 4। लो कर लो बात, आ गया तो। दैट मीन्स दिस इज द
नेक्स्ट भी वेरीफाई करो. 6 to the power 4 minus 4. 216 होगा ना. 216 minus 6. अच्छा हाँ, इल बी 4 क्यूब. सर 120 हो जाएगा क्या? हाँ, इल बी 6 क्यूब. That means for this one, it should be 5 cube minus 5. 125 minus 5, that is 120. तो क्वेश्चन मार्क की जगह 120 आएगा. तो ऐसे बहुत क्वेश्चंस यूसीड में आते हैं, एनआईडी में भी आते हैं, निफ्ट में भी आते हैं. रिसेंट 2025 क्वेश्चन. अगली क्लास में तुम यूसीड बुकलेट 3 लेके आओगे जिसमें हम 2024 के क्वेश्चंस करेंगे. यस. द नेक्स्ट क्लास, गेट बुकलेट 3 ऑफ यूसीड. मिल जाएगा तब तक. ठीक है. अभी तुम ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन फिनिश कर लो. पहले एक वो कर लेना, लास्ट एग्जाम्पल छोड़ देना, से कुछ मिसप्रिंट है, बाकी सारे कर लेना. ठीक है. मम्मी को बता देना सारे करने हैं, सारे कराएंगे तुम्हें. एक्सरसाइज भी करना है. हाँ, वो इस वाले चैप्टर प्रीवियस वाले के ना. एंड देयर विल बी सम टेस्ट आल्सो आफ्टर दैट. तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे? विल फिनिश वन चैप्टर ऑफ बुकलेट 10, देन वन चैप्टर 1 year क्वेश्चंस ऑफ यूसीड ऑल्टरनेटली. ठीक है. देखो यूसीड अगर सारे करेंगे तो परेशान हो गए बहुत ज़्यादा, बिकॉज दे आर स्लाइडली टफ क्वेश्चंस. So we'll mix up the things. Right? Ending the class. कोई डाउट होगा तो मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो. ठीक है. क्लास के बाद रुक के भी पूछ सकते हो.